It's a very great news to all of the aspirants who are preparing for PGT, TGT, any PGT, TGT, like the science subject, social science subject, or any subjects. The basic questions, the basics of English and Hindi are coming the same because the syllabus is same everywhere. But yes, the style of questioning may be different. But if we do understand the fundamental and basics of the grammar of English and Hindi or any regional language, it will be very helpful for us to understand the question. Then if we don't understand the question, it will be very difficult for us to answer. So first and the foremost thing is that we should understand the question, so that every teachers and every elder person asks us who are going to any examination, please to read carefully the question first, because there is a secret trick. The secret is that in every answer is within the question. You all know the trick is that every answer is within the question, because the question itself answer the answer. And is that clear? No. Because if there is any misunderstanding or you do understand, the question is asking that is that clear, either you are understand or you don't understand. This is the thing, two things are there is nothing else. Similarly, any preparation leads to a very extensive, dedicated, and insightful information about the subject content. If you are getting a fundamental ideas or basics of the concept, it will be very grateful to you. So guys, आज हम जो सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे वो है पार्ट वन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पीजीटी टीजीटी. इट इज नॉट फॉर द ओनली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पीजीटी टीजीटी. It is not confined here. Any person, any candidate who are preparing for Eklavya Model Residential School or any PGT, TGT, post state PGT, TGT, or any central level PGT, TGT, NAVS, please do watch the video. You will find definitely get some benefited from that. At least you do some fundamental ideas. After completing the series, the preparation series, the strategy series, then our team will come with the CBT or MCQ question part. Then please do bear with us, and for getting more videos, please do subscribe my channel. Please click on the bell icon to first getting the notification. Then please do share and like my videos. So guys, let us start the video. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो पहला सीरीज था हमारा, आज मॉर्निंग सुबह ही हमने अपलोड की थी. तो आप लोग वो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू होप में है, आप उसको देख लीजिए. उसके बाद ये ये जो है ये सेकंड सीरीज ही है. हम आज बात करेंगे कारक के बारे में. एक सेंटेंस हम पहले वीडियो में बात कर रखी थी, जो नाउन, प्रोनाउन, ना संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, और भी एक दो यूनिट में बात कर रहे थे. आज हम बात करेंगे अभी कारक के बारे में, उसके बाद और जो दो तीन यूनिट है उसके बारे में. कारक क्या होता है, सेंटेंस में कारक का भूमिका क्या है, यूजफुल क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. वो शब्द कारक वो शब्द है जिनका क्रिया के साथ प्रत्यय या अप्रत्यय संबंध बना रहता है. जो क्रिया होता है, जो वर्ब होता है, जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे कि राम खेल रही है, जो खेल होता है, राम इज प्लेइंग नाउ, द वर्ड प्लेइंग इज द वर्ब. सो दैट इन हिंदी में भी वही चीज होता है कि कारक क्या होता है, जो फैक्टर होता है, जो वर्ब होता है, सॉरी जो कारक होता है वो वर्ब के साथ ही जुड़े रहते हैं. कि राम ने फुटबॉल में फास्ट है, राम ने एग्जाम में फास्ट है, या सीता ने बहुत अच्छी डांस की. ये जो चीज होता है ने जो कर्ता के लिए जो होता है, जो कारक है, वो 8 प्रकार की 8 टाइप्स ऑफ फैक्टर से हम उसके बारे में भी बात करेंगे. और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं ये जो यूनिट में, वो बारे में भी हम बात करेंगे. कारक 8 प्रकार के होता है. वो होता है कर्ता, कर्म, कारण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन.
ये जो 8 प्रकार के कारक होता है, पहला सा कर्ता, जो कि मुख्य फैक्टर होता है, जो कि मुख्य होता है, जो कर रहा है वो कार्य, हु इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, लाइक गीता, गीता इज रीडिंग ए बुक, गीता इज द करता हियर, ओके। गीता ही करता है यहाँ पर। कर्म क्या, गीता इज रीडिंग द बुक, गीता एक वही एक बुक पढ़ रहा है या एक किताब पढ़ रही है, गीता एक किताब पढ़ रही है कि पढ़ना ही यहाँ पर कर्म होता है। पढ़ना, खाना, नाचना, गाना, कोई भी दौड़ना, सोना, ये होता है कर्म। जो जिसके बारे में हम बात करें वो होता है कर्ता। राम, गोपाल, श्याम, किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी वस्तु होता है, कौन से लोगो होता है, कोई भी हो। कर्म को, गीता को आज 1 लाख रुपया मिल गई, गीता को आज, सीता को आज एक नकरी मिल गई। को, वो जो कर्म के साथ जुड़ी रहता है। खेलना, कूदना, आ, ये जो चीजें होता है, कर्ता, कर्म, करण से, द्वारा, जो हमारे कर्ता होता है, फर्स्ट कर्ता के लिए, कर्म के लिए, हम ये पहले जानेंगे, वर्ब से ही जुड़ी रहता है, कोई भी क्रिया से जुड़ी रहना को हम कारक कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। दूसरे बार हमारा जो टाइप्स आता है वो कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान आता है। कारण में है से, द्वारा, इसका द्वारा, उससे, वो जो शब्द होता है। दूसरी बात है संप्रदान, के लिए, उनके लिए, इसके लिए। अपादान, अपादान कारक से क्या होता है, से, अलग होने के लिए। से जो वर्ड लगता है वो अलग होने के लिए, कोई सेपरेशन हो अगर, वो से लगाता है भर के साथ, उससे अपादान कारक। ये जो क्वेश्चन आएगा शायद कोई एक सेंटेंस होगा, कोई एक बात होगी कि राम रहीम के द्वारा पराजित हुई। वो जो द्वारा, कौन से कारक, वो अंडरलाइन होगा, द्वारा कौन से कारक, ये कौन से कारक है, आपको वहां पर सोचना है। ये जो सारे चीज, कर्म, कर्ता, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो 8 प्रकार कारक है, आपको मुखस्त कर देना है, मेमोराइज करना है, उसके बाद ही आप आंसर कर पाओगे, वरना वहां पर आप कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी कारक में। तो आपको ये मेमोराइज करना है कि कौन सी कारक में क्या रहते हैं। वो है से चलेंगे, उसके बाद संबंध, का, के, की, रा, रे, री, उनका, उसके, उसकी, वो जो होता है शब्द, वो संबंध कारक, कोई रिलेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, में और पर, में और पर, वो जो 2 शब्द होता है, अगर वर्ब के क्रिया के साथ कोई संबंध रखने वाले शब्द हो, में और पर हो उसमें, तो अभी अधिकरण ही डाल देना। वो जो क्वेश्चन टाइप हो सकता है वो हम तो हमारे सीबीटी सीरीज में लाएंगे, अभी हम फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद ये कारक खत्म हो गए। अभी आप 8 प्रकार के कारक को प्लीज टू मेमोराइज, बिकॉज इट विल आस्क द क्वेश्चन, ऑलवेज शुड आस्क, देयर विल बी ए सेंटेंस, एक शब्द, एक वाक्य होगी, उसके एक ही वो जो कारक है, द्वारा, से, का, की, रे, रा, री, जो भी, में, पर, जो भी शब्द होता है, जो भी वर्ड है वहां पर, वो अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आपको समझना है कि ये क्या है। अगर ऐसे भी पूछ सकती है, एक अंडरलाइन कर दे, ये पूछेगी कि ये एक प्रोनाउन है, नाउन है, कारक है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है वो भी हो सकते। सो वेरी एक्सटेंसिवली, डीपली रीड द कारक फैक्टर, जो कि होता है कारक का, वो जो बारे में सारे मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये 8 प्रकार ही है, बहुत छोटा ही है लिस्ट, इसको मेमोराइज करना बहुत इजी होता है। एक एक 2 बार सुनिए, उसके बाद आपको जरूर मेमोराइज हो सकते हैं। उसके बाद भी हम डिटेल में सीबीटी में जो लाएंगे, डिटेल क्वेश्चन, एक कारक के लिए 2-3 क्वेश्चन होंगे,
उसके उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य, दोनों ही है, विशेषण एवं विशेष्य। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो एडजेक्टिव्स हम बहुत अच्छे से समझते हैं, एडजेक्टिव होता है words that describe the characteristics of noun or pronoun words are called adjectives. हम ये जो सीरीज़ कर रहा है हिंदी का, वो हिंदी के लिए सिर्फ नहीं है, वो इंग्लिश के लिए भी है, इंग्लिश ग्रामर के लिए। सो वो सेम ही होता है। प्लीज़ टू लिसन केयरफुली टू इट। सो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन। हमको पता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। नाउन जो है वस्तुवाचक हो सकते हैं, वस्तु कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई लोग हो जैसे कि राम, शाम, नदी, ऑब्जेक्ट के बॉल, कोई चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब वो कोई चीज़ हम देख सकते हैं, एक वो तो सिंपल है, कोई चीज़ हम व्हाटएवर ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर थिंग्स वी कैन सी, ए ट्री, mango tree is a noun. Then mango is sweet. The sweet is the adjective because the sweetness of the mango वो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक से किसका, वो नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्वीटनेस नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए जो कि नाउन या प्रोनाउन दोनों की, नाउन के बदले में हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, कोई भी विशेषणता, कोई गुण हो या उसके बाद हम बात करेंगे उसका कैरेक्टर प्रकार भेद की, विशेषण कितने 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 प्रकार है। तो जो गुण को स्वभाव को, उसका स्वभाव हो या गुण हो उसको दर्शाता है, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वो 4 टाइप का है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, गीता इज ब्यूटीफुल गीता इज ब्यूटीफुल इन दिस सेंटेंस। द ब्यूटीफुल वर्ड हियर, गीता इज ब्यूटीफुल, द वर्ड ब्यूटीफुल इज an adjectives. Okay, so Gita is the noun which define Gita's characteristic define Gita is beautiful. गीता एक सुंदर लड़की है, सुंदर है, गीता सुंदर ही है, वो एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड गीता इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के एडजेक्टिव होता है, 4 प्रकार के। वो क्या क्या है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, देन समर्थार्थ, सर्वनामवाचक, विशेषण। फर्स्ट हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण, जो कि 3 टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। गुणवाचक में क्या होता है कि कोई वर्ड्स नाउन प्रोनाउंस दैट नोन हैव ए डिफेक्ट ऑफ वर्च्यू आर कॉल्ड क्वालिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव जैसे कि विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले, कोई सर्वनाम की विशेषता बता रही है, क्योंकि जो प्रोनाउन वर्ड्स दैट आर नोन टू हैव ए डिफेक्ट ऑफ वर्च्यू आर कॉल्ड द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कोई क्वालिटी, कोई कोई किसी भी क्वालिटी को समझाते हैं, वो होता है विशेषण क्वालिटी अथवा विशेषण संज्ञा व गुणवाचक विशेषण। गुण, कोई गुण जैसा कि हम क्या बोले, सॉल्ट, द टेस्ट ऑफ मैंगो इज स्वीट। स्वीट तो है, वो गुणवाचक, मैंगो का गुण है, वो स्वीट है। कोई मैंगो भी हमारा। और हम देखेंगे द कलर ऑफ वाटर इज कलरलेस। हम बोलते हैं जो कलर होता है वाटर के, वो कलरलेस होता है। और हम देखेंगे ये कि कोई अगर वस्तु का गुण क्या होता है, कोई लोगों का गुण क्या होता है। जैसे कि राम एक हेल्पफुल इंसान है, एक अच्छे इंसान है, वो अच्छा ही, वो हेल्पफुलनेस इज द गुणवाचक विशेषण होता है, द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होता है। उसके बाद हम देखेंगे जे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कोई परिमाण को सुझाए। अगर गीता की ओजन गीता के ओजन 60 केजी है, वो जो ओजन होता है, वो जो ओजन होता है गीता के, वो परिमाणवाचक होता है। अगर हम देखें और क्या क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव या परिमाणवाचक, कोई वस्तु का मात्रा को नाप तोल करे,
कोई 5 kg का होता है ये वो, या अगर कोई भी हम फ़ारेनहाइट में बताएँ, जो भी मेजरमेंट की तरीका होता है वस्तु का, वो जो मात्राएँ होता है नाप-तोल करने के लिए, वो परिमाणवाचक अ विशेषण को समझाते। उसके बाद संख्यावाचक, कोई अगर हम संख्या यूज़ करें, अगर किसी प्रकार की संख्या हो, वो कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड्स हो, नंबर एडजेक्टिव, उसके पास मेरे पास अ, 11 पेन है। वो जो मेरे पास 11 पेन है, मैं 11 गुण की अधिकारी हूँ। वो जो होता है, वो होता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। देन विशेषण, हम ये सारे चीज जो विशेषण होता है, विशेष से क्या होता है यहाँ पर, जो उदाहरण हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, गीता सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है। ठीक है, इवन इवन गीता विशेष्य है, जो जिसका गुण के बारे में हम बात करें, या वो कोई हो संख्यावाचक हो, वो कोई परिमाणवाचक हो, वो कोई गुणवाचक हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही विशेष्य है। जो बात कर रहे हैं, जो गुण के बात कर रहे हैं, वो विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा अथवा शब्दों के गुण दोष का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पर वो तो हम डिस्कस कर ली है। उसके बाद हम देखेंगे समास। समास क्या होता है? समास जो चीज़ है, वो उनके पदों के मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है। अनेक पदों, कोई भी बिखरा हुआ सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, उनको हम मिलावट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, वो निर्माण करता है समास कहलाता है। वो निर्माण को समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तकरण करना, कोई ब्रीफ करना। ओके, ये 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास हम पहले देखेंगे। अव्ययीभाव समास, देन 6 प्रकार समास भी बहुत इम्पोर्टेंट है पीजीटी टीजीटी फास्ट पेपर 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इनमें पहला पद अभय होता है, उस अभय पद का रूप, लिंग, कारक, वचन नहीं बदलता है। वो जो पहला शब्द होता है, वो अब पद अभय होता है, वो ही नहीं दिखता है, वो जो पहला पद होता है। जैसे कि आजन्म, जन्म से, आजन्म, जन्म से, आ नहीं रही। समस्त पद जो होता है, फिर जैसे कि विग्रह, सम विग्रह के बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि आजन्म हो, या और एक हम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम जो सीबीटी के प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम ये जो सारे चीज क्वेश्चन के रूप में आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ अस। देन हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला पद गुण एवं बाद का पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच का पद प्रधान होता है। उसके बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तथा विग्रह करने के पर कारक चिन्ह प्रकट होता है। जैसे कि चीडी को मारने वाले, चीडी मार। देन और चीडी ऐसे बोलते हैं हम, अ, धातु से निर्मित, सुना से निर्मित मुद्रिका, स्वर्ण मुद्रिका। जो बीच वाले जो शब्द होता है, वो लुप्त हो जाता है। तो पहला शब्द और लास्ट का शब्द वो ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तत्पुरुष। देन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिन दो पदों के मध्य विशेषण, विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य, उपमान,
हम बात कर रहे थे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास जो होता है कि जिन दो पदों के मध्य विशेषण या विशेष एवं उपमान और उपमेय का भाव अंतर्निहित होता है, उसके बीच में छुपे रहता है तथा विग्रह करने पर सारा रूप में, अगर हम उसको डाइवर्सिफिकेशन करते, सेपारेशन करते, सारा रूप में प्रस्तुत हो जाता है। उसको हम कर्मधारय समास कहता है। जैसे कि नीलांबरा, नीलांबर, नीला हो जो अंबर व जो आकाश नील रंग का होता है, हम उसको नीलांबर बोलते हैं। या पीतांबर, पीत हो जो अंबर, या पीतवाश हम बोलते हैं, जो उस कलर की ड्रेस पहनते हैं, हम उसको पीतांबर कहते हैं। हम अगर कोई बात करें तो आप एक दो शब्द होता है, आपके विशेष्य और विशेषण के बात करो, आपके उपमान और उपमेय के बात करो। कोई चीज को आप और एक चीज के साथ तुलना करती हो, ठीक है, वो चीज अंदर है, जो दोनों ही मिलावट हुआ है, लेकिन वो छुप कर रह जाते। अगर आप उनको संधि विच्छेद कर रहे हो, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, अगर आप उन दोनों को अलग कर रहे हो, तो वो बीच का जो उपमान उपमेय रहता है, वो चीज निकल के आता है। उसके बाद आप समझ गए कि हाँ, ये कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सेंटेंस रहेगा, वहां पर एक वो शब्द या कोई सेंटेंस लिख देगा, उसके बाद उसमें अंडरलाइन कर देगा कि ये चीज कौन कौन सी प्रकार की समास हो, कर्मधारय समास हो या कोई अलग भी समास हो सकती है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन उनके बीच में या, अथवा और शब्द का लोप होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण जो होता है, राधा कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर जो होता है। अगर हम बात करेंगे कि जलेश्वर, जल एवं ईश्वर, जो दो शब्द होता है, लेकिन जो बीच का शब्द और या वो छुप जाता है, हम दोनों को मिलावट कर देते। जैसे कि और एक उदाहरण दे हम, पाठ साठ। अगर दूसरे उदाहरण दे हम खेल कूद, और एक उदाहरण दे हम खाना पीना। दो चीज अलग होते हैं, लेकिन दोनों दोनों चीज के बीच में या और कोई भी शब्द हो सकती है। और जैसे कि हम दोनों चीज के जो मध्य भाग के शब्द है, वो लुप्त रहता है, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन करें, सेग्रीगेशन करें, तो वो निकल आता है। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास कहता है पहला पद संख्यावाचक हो। ये चीज याद रखना, ये संख्यावाचक शब्द है। ये क्या, ये उसके बीच में या हो या और शब्द होता है, जैसे कि राधा और कृष्णा। और द्विगु समास में क्या होता है कि संख्यावाचक शब्द हो, कोई पहले से ही संख्यावाचक। उदाहरण, धन के समान श्याम, विष्णु, त्रिनेत्र, और तीन हो जिनके नेत्र, शंकर। जैसे कि हम बात करेंगे, तीन हो जिनके नेत्र, वो है त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र किसका सिनोनिमस है, और कौन से भगवान को या किसको हम त्रिनेत्र बुलाते हैं, वो हम सब जानते हैं, शंकर भगवान को या शिव जी को। वो होता है ये शंकर, ये अलग शब्द आ गए, ये यहाँ पर आप अलग ही एक शब्द है, वो संख्या से शुरू होता है, तीन। सप्त ऋषि, सप्तश्री, सप्त ऋषि, सप्त दो सात ही, सात ऋषि को समाहार को हम सप्तश्री बुलाते, वो होता है सप्तश्री। ऐसे ही कोई शब्द रहेगा सप्तश्री, त्रिनेत्र, या कोई भी शब्द रहेगा, तो उसके बाद आपको बुलाएंगे कि ये कौन से समास है। आप द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, वो सारी समास को इसीलिए
आप इनकलकेट करना है, आपको समझना है, उसके बाद आप आंसर कर पाओगे। हम जो यहाँ पर उदाहरण सहित जो भी समझा रही है, जो समास को आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप ये जो चीज़ें बार-बार देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, ये चीज़ कितने कितने एक-एक बीच एक-एक लाइन का फ़र्क होता है, छोटा-छोटा डिफ़रेंस होता है एक-एक समास के अंदर। प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए। देन हमारे समास हो गए। अ, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया होते हैं क्या? जो हम बात करेंगे वर्ब होते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह जिसके अनुसार किसी कार्य को के होने अथवा करने के बोध हो क्रिया कहलाते। कोई हम कार्य करना चाहते हैं अथवा कार्य कर रहे हैं, उसको हम क्रिया। अनु दूध पी रही है, वो जो पी रही है अभी, अनु दूध पी रही है, वो ही है क्रिया। पीना एक क्रिया है। अनु नहा रही है, नहाना एक क्रिया है। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की क्रिया होते हैं। जो सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया। वो गीता पी रही है, दूध पी रही है, गीता के ऊपर वो नहीं पड़ेगा। कर्म कर्ता को छोड़कर वो जो क्रिया कर्म के ऊपर पड़ता है, उनको हम सकर्म। जैसे कि लोग रामायण पढ़ते हैं, यहाँ पर जो करता है वो कौन है? लोगो। रामायण पढ़ रहे, कर्म के ऊपर, पढ़ने के ऊपर वो पढ़ता है। दूसरे बात, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, जो करता है उनके पर ही पड़ता है, हम उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, गौरव रोता है, वो गौरव ही है, वो रो रही है, इसीलिए वो चीज गौरव के ऊपर ही पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों रामायण पढ़ रहा है, वो कर्म रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ते, इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लोग पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, सीता पढ़ रहे, कोई भी पढ़े, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर गौरव रोता है और कोई नहीं है, गौरव ही रोता है। तो उपसर्ग उसके बाद किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके एक विशेष अर्थ प्रदान कर देना उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि कोई शब्द से आगे ही आ जाए, उसके शब्द का और एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाना। जैसे कि आगमन, गमन करना, आगमन। प्रताप। देन किसी शब्द या धातु के अंत से जुड़ने वाले शब्द का संबद्ध प्रत्यय कहलाता है। अगर हम उदाहरण दें, आवना, डरावना, लुभावना, सुहावना, ये जो शब्द होता है, वो जो ना शब्द होता है, लुभावना, डरावना, वो जो ना शब्द की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इन प्राचीन, महीन, ये जो होता है शब्द, ये खत्म हो गई हमारी। जो तीन चीज हमारे यहाँ पर खत्म करी, एडजेक्टिव, समास, देन और क्या, उपसर्ग, और जो दो तीन चीज हम खत्म करें, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है संधि एवं संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे। एक शब्द हो, उसको हम दोनों ही भाग में विभक्त कीजिए। जैसे कि पंचानन, पंच प्लस आनन, पंच आनन, जिसका 5 eyes, who are having 5 eyes, जिसके पास 5 आँखें हो, उसको हम पंचानन आनन बोलते हैं। आनन का शब्द का मतलब, 5 शब्द का मतलब वो समझना। कोई ऐसे भी कोई भी शब्द हो, उसके संधि विच्छेद करो। गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि जो होता है, वो दोनों ही शब्द है, उसको मिलावट कर गीतांजलि बोल ले। जैसे कि और एक बात ले, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धा अंजलि। देन हम देखेंगे उसके बारे में बहुत सारी चीजें। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, 3 प्रकार की। स्वर संधि क्या है? दो स्वर के परस्पर मिल से विकार उत्पन्न होता है।
वो बहुस्वर संधि कहलाता है। ये 3 प्रकार की होता है, जैसे कि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। हम व्यंजन संधि के बात करेंगे कि 2 शब्द एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों का योग से मिलने वाले जो होता है विकार पैदा होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि अ, हमारा जो है दो व्यंजन शब्द होता है, उसके दोनों का मिलावट आप करो, वो जो निकलता है रिजल्ट, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद जो विसर्ग संधि होता है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग वक्नी आती है, देन तो हो तो उसके बाद आने वाले शब्द से स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने योग होने से जो भी ना विकार उत्पन्न करता है, अ, होते वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि हम देखें, एक एग्जाम्पल हो उसका, संधि विच्छेद हम करना, जैसे कि हम दोनों चीज करते हैं। एक शब्द लो आप, जिसका दो ही आपको प्रोनाउंस करने के समय दो ही शब्द निकलता है। जैसे कि अ, मैंने अभी बात कही कि ऋतुपर्णा, ऋतु प्लस पर्णा, ऋतुपर्णा। अ, और एक शब्द लेते हैं हम, जो कि है दिवारात्र, दिवा प्लस रात्र। और एक शब्द लेते हैं हम महावीर, महायुक्त वीर, महायोग वीर होता है। देन महत्वपूर्ण, महत्व प्लस पूर्ण। और एक गुरुत्वपूर्ण, गुरुत्व प्लस पूर्ण। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके संधि विच्छेद करें हम। और छोटे छोटे भी शब्द होता है जिसका बहुत सारे उपसर्ग होता है, बहुत सारे शब्द होता है उसमें, जिस शब्दों का हम खंड विखंडित करके उसको समझते हैं। वो सारी संधि के लिए एक क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन सेट ही आपको बहुत इजी में समझना आ जाएंगे। वो संधि को आप मेमोराइज करना है। देन मुहावरे, जो आइटम्स हम कहते हैं, जैसे कि कोई एक शब्द को विलक्षण एवं चमत्कारपूर्ण अर्थ का बोध कराना वाले वाक्यांश को मुहावर कहते हैं। जैसे कि गिराना, उत्साह दिखाना, और अलौकिक कहवत, जो कि लोकायत कहावतें हैं, जो भी लोग ऐसे ही कहते थे। कोई उदाहरण, अपने पगड़ी अपने हाथ, अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है। वो जो बहुत बड़ी लैंग्वेज सेंटेंस हो गया है, लेकिन छोटा में जो आइटम्स करते हैं लोग, कहावतें, अपनी पगड़ी अपने हाथ है, जो है वो अपना सामान अपने हाथ में ही है। वो उसका सेंटेंस का एक प्रिसी बनाना, एक ब्रीफ बनाना है, एक बड़ी सेंटेंस का, वो है आइटम्स व मुहावरे। शुद्ध अशुद्ध वर्तन, प्योर और मिसस्पेलिंग वर्ड्स, जैसे होता है कि जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई रीजनल लैंग्वेज हो, इसमें प्योर सेंटेंस होता है, लैंग्वेज होता है, वर्ड होता है, मिसस्पेलिंग वर्ड होता है। जैसे अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, प्योर शब्द, आविष्कारक, कौन सी सा यहाँ पर लगेगी, कहाँ पर आकार, ओकार, इकार कहाँ पर लगेगी, वो यहाँ पर आविष्कार, दंतेश लगा रहे, वहां पर मुदनेश, आविष्कार। ख्याल, ख्याल। देन ऐसे ही बहुत सारे शब्द है, जैसे कि आप उसको एक गलत तरीके से लिख सकती है वो, आप उनको स्पेल आउट करना है ठीक से, आप उनको बताना है। देन वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई भी वर्ड हो, वो गलत से वर्ड लिखी हो, उसके बाद आपको वो वर्ड को सही करना है, वो सेंटेंस को सही करना है। विराम चिन्ह का प्रयोग, कहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्ह होता है, हम कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विराम क्या होता है, विश्राम, टेक रेस्ट। नाउ यू नीड एटलीस्ट सम रेस्ट for a knife, at least a full rest or deep sleeping,
whatever they are, that is called a magical words for viram, जो rest होता है. For the completeness of the accused, the words have to be emphasized or paused at some point of time. कुछ ही चीज लिख लो, उसके बाद आप कमा देते हो, फुल स्टॉप देते हो, कोई भी आप विराम लगाते हो, उस चीजों के लिए वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, वो समझ जाता है, उसका वाइब्रेशन आता है. इसी को हम विराम कहते हैं. जैसे कि पूर्ण विराम होता है. Mahesh is sleeping. That is stop. There is no. Then another sentence will begin there. Then अल्प विराम. प्रकाश इट्स एप्पल. प्रकाश ने सेव, आम और संतरा खाए. सेव एक, आम और, तीन शब्दों को मिलावट कर रहे हो. देन अर्ध विराम, हाल ब्रेक, जहां पर हम लेते हैं जब तक हम गरीब है, बलहीन है, तब तक हमारा कल तब तक हमारा अ, जब तक हम गरीब है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता. जैसे कि as long as we are poor till we are powerless we can be benefited. उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क विराम की. व्हेयर आर यू गोइंग, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है किसी को, तो वो वहां पर तक क्वेश्चन मार्क होता है. एक्लामेशन और एड्रेसन, कोई आप ओ गॉड प्रोटेक्टर, ओ भगवान उसके रक्षा करे, अरे वह, अरे वह क्या हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करे, वो जो शब्द होता है वो एक्लामेशन और एड्रेसन होता है. उसके बाद रिवीजन सिंबल, अवतरण चिन्ह. जैसे कि आप किसी को कोटेशन में रखते हो, रामधारी सिंह दिनकार इज ए फेमस पोएट, तो उसको आप डबल सिंगल सिंगल कोट होता है, वो सिंगल कोट में रखते हो. और डबल कोटेशन जो होता है, दोहरा उदाहरण सिंह, जिसके तिलक सेड, कोई किसी को स्पीच को एक डबल कोटेशन में आप रखते हो, कोई एक बड़ा सेंटेंस को रखते हो. उसके बाद डायरेक्ट सिंबल, कोई जैसे कि ज्योत्सना, मूनलाइट वाज स्पाल्स्ड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी. क्षमाशीन, माता पिता, अरुण, भूमि. देन कोष्टक या द पांथेस के होता है, आप कोई भी ब्रैकेट जो हम बोलते हैं, हम रखते हैं कोई चीज़ वहाँ पर ब्रैकेट में. देन विवरण चिन्ह, डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, तो डबल डॉट देते हैं, वो डिस्क्रिप्शन होता है. यहाँ पर हम इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. एब्रिविएशन सिंबल, कोई भी एक छोटा सा, जैसे कि डॉक्टर, हम तो पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, डी डी टी लिख देते हैं, या डी ही सिर्फ लिखते हैं. इंजीनियर, कोई इंजीनियर तो फुल ही नहीं लिखता है, वो इंजीनियर का एब्रिविएशन सिंबल होता है. लूप सूचक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं, यहाँ पर खत्म हो गई. अभी जो होता है सब डिवीजन होता है, रश्मि, धनु, कल ए रिव्यू, कोई भी बुक हो उसका शुरू मूवमेंट, ए रिव्यू, ए स्टडी, ऐसे ही होता है. उसके बाद हम देखेंगे जो सिमिलर वर्ड होता है, जो सिनोनिमस होता है. पर्यायवाची शब्द जो होता है, युवती, जो कि एक गाल, तरुणी हो सकते हैं, श्यामा हो सकती है, रमणी हो सकती है, सुंदरी हो सकती है. जैसे कि आप इंग्लिश के सिनोनिमस देख रहे हो, एक गाल, लेडी, फीमेल, जैसे कि ये जो ओमेन, ये जो सारे शब्द, ऐसे ही हिंदी में आपको मुखस्त करना है. ऐसे ही बहुत सारे शब्द होता है जिसको आप उसके सिमिलर शब्दों के साथ जानना है. उसके बाद ये तो ख़त्म हो गया आपकी सारी हिंदी का यूनिट, और जो बाकी है हम उसको और एक वीडियो में बताएंगे. आज बहुत नेट प्रॉब्लम थी, इसीलिए सारे चीज़ हम नहीं बता पा रहे हैं. वो जो सीबीटी का सीरीज आ जाएगी उसमें आपको सारे चीज़ हम बता लेंगे. सो प्लीज़ डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर व्यूअर्स, please do bear with us, and please do subscribe my channel and watch regularly for more updates.